थैंक यू सर गुंजन मैम का ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ। वेरी नाइस, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। और हार्ट की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुई है, सिर्फ वजन की वजह से प्रॉब्लम थी, अभी बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। वी हैव हरमेल सर, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। हाँ जी हरमेल सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम हरमेल सिंह, मैं पिंड फतेहगढ़ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ 13 ਮਹੀਨੇ 4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣਾ 32 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ 22 ਕਿਲੋ ਫੈਟ ਲਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਡੀਅਲ ਵੇਟ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਔਰ ਮਸਲ ਗੇਨ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਰ। ਜੋ ਸਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਕੀ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ ਹੈਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਰ। ਸਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਣ ਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਮਿਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ, ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸਰ 8:30 ਵਜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਨਮੋਟ, ਧੰਨਵਾਦ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ਵਧੀਆ ਜੀ क्लैपिंग कर दो सर ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕੱਲ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਉੱਠਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੇਸਿਕਸ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮਾਈ ਨੇਮ ਇਜ਼ ਰੀਤ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੈਂ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈंने ਆਪਦਾ 20 kg weight lose ਕਰਕੇ 10 ਇੰਚ ਸਰ ਲੋਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ। ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਾਰੇ ਸੀਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ। ਮਤਲਬ ਮੈਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਣਾ ਓਵਰ weight ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸੂਲਿਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। नेक्स्ट वी हैव फिट एंड फाइन वेलनेस सेंटर, आप अपनी साइड से अनम्यूट करके शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम परवीन है, बरनाला सिटी तो बिलोंग करती हाँ। इस वंडरफुल सिस्टम ਨੂੰ ज्वाइन करके मैं ਹੁਣ तक अपना 12 kg फैट लॉस ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਫਿਟ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਲੱਡ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਵੀ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਠਾ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਰੀਜ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰਟ ਦਾ ਵੀ ਰਿਸਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨੇ ਸ਼ੂਗਰ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਾਈਪਾਸ ਸਰਜਰੀ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੈਮ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਗੁੰਜਨ ਮੈਮ, ਰਿਧੀ ਮੈਮ, ਪੁਨੀਤ ਸਰ ਦਾ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। बहुत ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੂਰਤੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੂਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਗਠੀਏ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੈ ਕੇ। ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਰ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਇਨਸੂਲਿਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆਗਾ, ਫਾਈਬਰ ਵਗੈਰਾ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਫੈਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। थैंक यू सर। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। सतिंदर कौर लिखे हैं मैम, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਭਜਨ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਭਜਨ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰ ਵਾਲੇ ਡਿਵਾਈਸ ਤੋਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ ਜੰਮੂ ਲਾਤੀ, ਹਾਂਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਲਿਖਿਆ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਹੋ ਗਿਆ ਅਨਮਿਊਟ ਸਰ? ਹਾਂਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਐਵਰੀਬਾਡੀ, ਹਰਬਲਾਈਫ। ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੁੜੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਅੱਜ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ 3 ਟਾਈਮ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਡਾਈਟ ਪੂਰੀ न्यूट्रिशन पूरा ले रहे हैं। आज मेरी शुगर 150 के करीब पहुंच गई है और मैं बड़ा खुश हाँ कि मैं अपने आप को इंप्रूव किया है और मैं कोशिश कर रहा कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਸਰ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਮਿਊਟ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ ਸਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਢੁੱਲੀਵਾਲ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ 1 ਮੰਥ ਹੋਇਆ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ weight ਲਾਸ ਹੋਇਆਗਾ। ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੰਦੀਪ ਮੈਡਮ ਦਾ ਤੇ ਕਮਲ ਮੈਡਮ ਦਾ ਤੇ ਗੁੰਜਨ ਮੈਡਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈ ਮੀਨਾ ਮੈਮ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਰ, ਮੀਨਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਸਿਸਟਮ ਚ ਆਈ ਸੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 6.25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਜ਼ਨ ਵੱਧ ਕੇ 82 ਕਿਲੋ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਬੋਡੀ ਸਵੈਲਿੰਗ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੁੰਨਦੇ ਸੀ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਯੂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟ ਸੀ, ਪੈਰ ਦੀ ਅੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀ। ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਕੋਚ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਲ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 30 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਘਟਾਇਆ। ਪਿਛਲੇ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ weight ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ। ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਸੀ ਸਰ। ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕਿਉਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਸਰ ਜੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰ, ਮੇਨ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ 5 ਕਿਲੋ ਵੀ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਧੂਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਸਿਰਫ 5 ਕਿਲੋ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ, ਵਧੀਆ ਜੀ, ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਮ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਜੋਤੀ ਮੈਮ, ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਜੋਤੀ ज्योति मैम, हाँ जी। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम ज्योति देवी और मैं जम्मू से हूँ सर। इस हर्बल लाइफ में आए हुए मुझे 3.5 महीने हो गए हैं और 3.5 महीने में मैंने अपना 26 किलो वेट लॉस किया है और मेरे को घुटनों में दर्द थी, बीपी, थायराइड, लीवर की प्रॉब्लम थी। लीवर भी बिल्कुल अब ठीक है, बीपी बिल्कुल ठीक है और घुटने तो बिल्कुल नए हो गए हैं। जैसे वेट कम हो, जैसे 5 किलो वेट कम हुआ और घुटने में मेरे को फर्क अब तो बिल्कुल। रात को रोती थी, सुबह रोती थी, डॉक्टर को दिखाती थी, लेकिन अब तो बिल्कुल ठीक है। गुंजन मैम और आपका बहुत शुक्रिया और मेरी कोच का जिसने मेरे को हर्बल लाइफ में लाया। पहले तो विश्वास नहीं था कि वेट कम होगा, अब इतना विश्वास है कि आगे भी लोगों की मदद कर रहे हैं और जो ठीक हो रहे हैं जब वो थैंक यू बोलते हैं इतना खुशी मिलती है, मैं बता नहीं सकती सर। ये आपकी वजह से, गुंजन मैम की वजह से हुआ सर। वेरी नाइस, पहले तो बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए। मैं आपको एक और कमाल की बात बताऊं मैम, आपको कितना समय हो गया स्टार्ट किए? मैम सर 3.5 महीने हुए हैं अभी। 3.5 महीने हुए हैं। पिछले 1 महीने से ये लोगों की हेल्प कर रहे हैं। कितने लोगों की हेल्प कर चुके मैम आप? सर 10 लोगों की हेल्प की है। 10 पर्सन्स की हेल्प भी कर दी मैम। सर का भी रिजल्ट शेयर कर दो। सर को गैस की प्रॉब्लम थी, वेट ज्यादा था थोड़ा। मैं 2 टाइम शेक ले रही हूँ सर, 1 टाइम ले रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। और जैसे मेरे को देख के वो ऐसे ही ठीक हो गया। मैं तो रोती रहती थी उनके सामने। जब मैंने शुरू किया, मेरा रिजल्ट महीने में आया तो सर ने, बेटी ने, बेटा भी लेता है,
बेटी ने फ्रेश लेके 3 किलो वेट लूज की है, बीच में शेक लेती है, हम सभी क्लास लगाते हैं बैठ के। अभी तो वो स्कूल गए, जब छुट्टी होती है हम सारे एक साथ बैठते हैं। और मैं अपनी कोच के पास बार बार सर जाती हूँ, उनके बिना तो मेरे सुबह ही नहीं होती है। सुबह फोन करती हूँ, रात को, लेकिन उन्होंने कभी, जब भी फोन करती हूँ हंस के बात करते हैं, जो क्वेश्चन होता है हंस के जवाब देते हैं। अब ऐसे लगता है कि उनके बिना रह ही नहीं सकते सर हम। वेरी इतने नाइस, बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए मैम के लिए और इनके कोच के लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अमेजिंग कर रहे हैं। और मेरा प्रॉमिस है कि ये जम्मू वाले बहुत अमेजिंग करने वाले हैं, राइट? बहुत जोर लगा रहे हैं, बहुत अपने रिजल्ट पे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, राइट? सो ये था हमारा आज का पार्ट। बहुत सारे रिजल्ट्स हैं जो रहते हैं, बट हमने कल के दिन कवर करेंगे। सो अभी जो पार्ट है वो हमारे सीनियर कोच का पार्ट है, मैं उनको इन्वाइट कर रहा हूँ। सो रेडी एवरीवन? रेडी? आपको आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी सीट से आधा आधा इंच आगे आना होगा। जहां पे भी आप बैठे हो आधा आधा इंच आगे आइए, राइट? अच्छी सी स्माइल कीजिए, अच्छी सी क्लैपिंग कीजिए, फिर हम वेलकम करेंगे हमारे वेरी सीनियर को सरदार प्रेम जी सर ऑन दिस। सर आप अपनी थैंक यू साहब। दोनों हाथ ऊपर करें और बढ़िया सी क्लैपिंग करें साहब के लिए एंड डॉक्टर गुंजन के लिए। आज का सेशन तो बहुत ही पावरफुल था और मुझे लगता है कि इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। लोगों को लगता है कि सिर्फ ये मोटे पतले होने का सिस्टम है, लेकिन ये बातें कभी किसी ने करी नहीं। मतलब 52 की एज तक मैंने नहीं कभी सुना था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है। आपने सुना था किसी ने? मेरे को लगता है किसी ने सुना ही नहीं होगा। और यही पता था कि इंसुलिन लगानी है, शुगर हो गया तो ये मीठा नहीं खाना है, सैर करो, खाना छोड़ दो, बस ये बातें सुनी थी। लेकिन अंदर की जो सीक्रेट्स हैं ये किसी ने कभी बताए नहीं थे। एंड अच्छी सी क्लैपिंग सब लोग अपने लिए करो जो सीखने के लिए रेडी हैं, और जोरदार क्लैपिंग करो। आपको पता नहीं है, आप ना सीख सीख के ना खुद ही डॉक्टर बनने वाले हो। आपको सारा समझ आ जाएगा धीरे धीरे क्या खाना है क्या नहीं खाना है। बहुत लोग यहाँ पे नए हैं, बहुत बातें समझ नहीं आती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे सब समझ आएगा। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, फाइबर क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, ओमेगा 3 क्या होता है, बॉडी को न्यूट्रिशन की जरूरत है या मेडिसिन की जरूरत है, सारे आपको जो कंपैरिजन करोगे ना सब आपको समझना शुरू होएगा। एक बात आपको जो मोटी मोटी बात है वो समझ आएगी, जो मेरे को 10 साल पहले समझ आई थी कि ये जो बॉडी है ना भगवान ने बनाई है, इसमें बहुत पावर है। ये बॉडी ही अपने आप में मल्टीपल हॉस्पिटल है। जो भी आपका कोई हेल्थ इशू है, आपको कोई प्रॉब्लम है बॉडी में, उसको बॉडी खुद ही ठीक करती है। बॉडी में हीलिंग पावर होती है। इसको अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छे लोगों की संगत, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छा माइंडसेट मिलता है तो आपकी सेहत, आपके रिश्ते, आपका माइंडसेट एंड आपके जो इनकम के सोर्सेज हैं इनमें ड्रास्टिक चेंज आना शुरू होता है। बड़ी अच्छी क्लैपिंग कर दो। यही मेरे साथ हुआ, यही आपके साथ हो रहा है, क्योंकि ये प्रोसेस है। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम प्रेमजीत है एंड 10 साल पहले मैंने अपना 46 किलो एंड अभी तक मैंने अपना 58 केजी फैट लॉस करा है। ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो गई है। बस दिन में 30 से 32 गोलियाँ एलोपैथी की खाने वाला था मैं। और मेरे वाइफ को खानदानी हार्ट की प्रॉब्लम थी, उनकी हार्ट बीट 25 थी एंड डॉक्टर बोलते थे कि अगर इनकी हार्ट बीट और भी कम हो गई, वज़न बहुत ज़्यादा है, तो इनको पेसमेकर डालना पड़ेगा, इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी। हमें बहुत डर लगता था। उनको लगता था कि अगर ये पहले चलेंगे तो मेरा क्या बनेगा, अब मेरे को लगता था अगर ये चलेगी तो मेरे को कौन सँभालेगा। ये हमारे हालात थे। और मेरे मदर को कैंसर की प्रॉब्लम थी एंड हमारे घर में एथलेटिक्स की प्रॉब्लम थी, मेरे सिस्टर को स्किन की प्रॉब्लम थी, पीसीओडी, पीसीओएस, ये बहुत सारी प्रॉब्लमें थी। लेकिन हमें इन चीज़ों का ज्ञान नहीं था बिल्कुल भी। हमें ये था कि सुबह शॉप पे जाना है एंड कस्टमर कोई खाली ना जाए, बस सामान अच्छा रखना है, व्यापारी कोई नाराज़ ना हो जाए, कस्टमर कोई नाराज़ ना हो जाए, बस ये चीज़ों का पता था। हमें खाने-पीने के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। वही वजह थी कि हम बीमार थे, हम लोग ओवरवेट थे एंड बॉडी में एनर्जी नहीं रहती थी। और मैं बताना चाहूँगा हमें खानदानी शुगर की प्रॉब्लम थी। आज सारा सेशन मेरे ऊपर ही था। मेरी आँखों के सामने 81 की एज में मेरे दादी जी को शुगर अटैक कर गई। हमें नहीं पता था इंसुलिन क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होती है एंड उनकी पूरी बॉडी सुन्न हो गई और उनकी डेथ हो गई। मैं छोटा था उस समय। एंड उसके बाद मेरे ताया जी 76 की एज में उनके पूरे पैर कट गए, टाँगें काटनी पड़ी, बॉडी गल गई, इन्फेक्शन हो गई, बॉडी काली हो गई और वो कहते थे मेरे से पेन बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे को पॉइज़न का टीका लगवा दो, मैं जीना नहीं चाहता। तड़प-तड़प के मेरे ताया जी की जान गई हमारी आँखों के सामने। हम कुछ नहीं कर पाए, हमें पता ही नहीं था फाइबर क्या होता है। हम डॉक्टर के भरोसे रह गए एंड उसके बाद 69 की एज में मेरे फादर के किडनी फेलियर हो गए। वो भी शुगर के पेशेंट थे, इंसुलिन रेजिस्टेंस थी बॉडी में और हमें नॉलेज नहीं थी।
मतलब 3 साल डायलिसिस कराते रहे पापा के 66 से लेके 69 की एज तक, और 69 की एज में उनकी बॉडी बिल्कुल ही डेड हो गई, अंदर से जान ही चली गई फादर की, और वो दुनिया से चले गए हमारी आंखों के सामने। और 66 साल की एज में सेम प्रॉब्लम मेरे चाचा जी को थी शुगर की, उनको शुगर अटैक करके उनके हार्ट में 2 छेद हो गए और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद घर में मैं था 52 ईयर्स का, मेरे को लगता था कि 81 से 76, 70 से 69, 69 से 66, अभी मैं 52 का हूँ, तो 60 से पहले पहले मेरी भी रस्म पगड़ी हो जानी है। संत चलने भले नगरी बसती भली, वेट बहुत ज्यादा था, शुगर बहुत ज्यादा रहती थी, बीपी हाई रहता था, पुड़पुड़ियाँ मतलब यहाँ से बहुत पेन करती थी, पिंजनियाँ दर्द करती थी, बॉडी पेन होती थी, स्पाइन में प्रॉब्लम थी, कराड़े मारता था, सांस रुक जाती थी। अब मेरे को लगता था कि 1-2 साल ही है मेरे पास, बस मैं ज्यादा नहीं जी पाऊंगा। और मैंने बहुत डॉक्टर्स को उनके पास गया, बहुत हॉस्पिटल में गया। एक डॉक्टर के पास तो मैं चेकबुक भी ले गया अपनी साइन करके। मैंने मन में सोचा 20-50 जितना भरेगा 50 लाख भर लो, मेरी शुगर ठीक करो। मैंने डॉक्टर को ऑफर दिया कि आप ना चेक मेरा साइन किया हुआ है, आप चेक भर लो जितना भरना चाहते हैं, बस मेरे को गारंटी दे दो कि मेरा शुगर ठीक हो जाएगा। लेकिन वो डॉक्टर बहुत ऑनेस्ट थे, अगर वो भरना चाहते चेक भर भी सकते थे। उन डॉक्टर साहब के लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। उन्होंने पता मुझे क्या बोला, मैं संगरूर से दिल्ली गया था उनके पास, और 3-4 दिन वेट करने के बाद मेरी बारी आई थी, और वहाँ 400-500 पेशेंट बैठे थे। सुबह 9 बजे गए, शाम को 6 बजे मेरी बारी आई थी। 6 बजे उनसे जब मैं मिला तो मैंने एक ही बात करी कि डॉक्टर साहब आप चेक भर लो, मेरे को गारंटी दे दो मेरी शुगर ठीक हो जाए, मेरे घर में 4 मौतें हो गई हैं। उन्होंने बोला नज़दीक आना ज़रा, मैं नज़दीक हो गया, उन्होंने और आओ थोड़ा, मैं और हो गया। मेरे को लगा ये कभी मेरे को डांटेंगे अभी। उन्होंने बोला भाई साहब 20 साल से तो मुझे खुद को शुगर है, मैं खुद इंसुलिन लगा रहा हूँ, ये तो लकड़ियों पे ठीक होती है, आपको किसने बोल दिया ठीक हो जाएगी? आप सोचो उस समय मेरा क्या हाल हुआ होगा। मतलब दिल्ली के नंबर 1 डेप्टी डॉक्टर जो थे, उन्होंने मुझे ये बात बोली, ये लकड़ियों पे ठीक होगी, इंसुलिन लगाते रहो, खाने पीने का ध्यान रखो, मीठा बिल्कुल बंद करो, सैर करो, बस इसको कंट्रोल करो कि और ना बढ़े, ये मत सोचो कि ठीक हो जाएगी। कमाल की बात बोलूं, पिछले 10 साल से जब से मैं सिस्टम में आया, मेरे कोच के लिए क्लैपिंग करो बढ़िया सी। आया तो मैं अपना वजन कम करने के लिए था, लेकिन पिछले 10 साल से मैंने ना शुगर की, ना बीपी की, ना बॉडी पेन की, ना एल्प्रेक्स, ना सिट्राजिन, एक चुन्नी की गोली भी नहीं खाई है। बड़े सी क्लैपिंग कर दो इसके लिए। थैंक यू मार्क्यूस। मैं कैसे हर्बलाइफ को धन्यवाद नहीं बोलूंगा, कैसे मैं लोगों के कहने से इसको छोड़ दूंगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। जब लोग पूछते हैं ना सर इन्हों कितना चिर खाना है, और कितना चिर खाना है, 6 महीने हो गए, तो मैं उनको बोलता हूँ भगवान का नाम कब तक लोगे आप? बोलते हैं पूरी जिंदगी लेंगे। श्वास कब तक लोगे आप? पूरी जिंदगी लेंगे। खाना कब तक खाओगे? तो पूरी जिंदगी खाएंगे। पानी कब तक पियोगे? बोले पूरी जिंदगी पिएंगे। मैं इसको भी पी लो, फिर क्या दिक्कत है, ये कौन सा कोई दवाई है? ये तो खाने के बदले खाना ही है, राशन, अच्छा राशन है। हमारी कंपनी अच्छा राशन बनाती है, अच्छा खाना बनाती है, जो हमें मिला नहीं है। पिछले 30 साल से हमारी इंडिया में ये हाल है कि हमारी जो धरती माँ है उसको कैंसर हो गया, जहर उसको खिलाया जाता है, उसमें डाला जाता है। पानी हमारा गंदला हो गया, उसमें यूरेनियम सॉल्ट डल गया है, एंड हवा में पोल्यूशन है। एक चीज तो आपको मिली है, इसको भी छोड़ दोगे, फिर जाओगे कहाँ आप लोग? मतलब इसके बाद तो फिर वही हाल है, हॉस्पिटल जाओ, सर्जरी कराओ, डॉक्टर के जाओ, दवाइयाँ खाओ, फिर हाय हाय करो। क्यों हमें ऐसा करना है? मतलब कोई ना आपने पुण्य काम किया है, जो आपके घर में हर्बलाइफ आई है, क्लैपिंग करो बढ़िया सी। अच्छा था पुण्य किया, आपको जो कोच मिले हैं, ऐसे नहीं मिलते ये। एक छोटी सी कहानी है कि एक ना पर्सन ना किसी आइस फैक्ट्री में काम करता था। वहां पे बड़े बड़े फ्रीजर लगे थे, और उन्होंने मतलब हजारों गैलन पानी भरते थे टैंकर्स में, और 3 घंटे में बर्फ जम जाती थी। तो उसकी ड्यूटी थी निरीक्षण पे, कि आपको जाने से पहले ना सारे फ्रीजर को चेक करना भी ठीक से काम कर रहे हैं ना। सुबह मतलब ये ना हो कि कोई फ्रीजर चला नहीं तो लॉस हो जाए कंपनी का। तो जाने से पहले वो सारे फ्रीजर चेक करता था, और 6 बजे फैक्ट्री बंद हो जाती थी, और उससे पहले पहले सारा काम करना होता था। तो एक दिन उसको ध्यान नहीं रहा, वो चेक करता करता ना अंदर ही लॉक हो गया, मतलब बाहर से गेट मैन ने लॉक कर दिया, उसको पता नहीं था कि हमारे साहब अंदर हैं।
फ्रीजर चालू हो गए, उसने बहुत खटखटाया दरवाजा के मेरे को बाहर निकालो, सब चले गए थे, फैक्ट्री लॉक हो गई थी। एंड उसको पता लग गया कि अब 3 घंटे में मेरा बुरा हाल होना है, मेरे को जम जाना है, मेरी डेथ हो जानी है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। वो रो रहा था अंदर, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान कोई रास्ता बना दो मुझे बचाने का, अगर मेरे से कोई गलती हो गई है मुझे माफ करो। मेरे को पता है इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन मेरे बच्चों की तरफ देखो भगवान, आप देखो मेरी डेथ कैसे होगी, मैं जम जाऊंगा। 15 मिनट में गेट खुला, क्लैपिंग करो बढ़िया सी। 15 मिनट में गेट खुला और सिक्योरिटी गार्ड अंदर आया, लेकिन वो बंदा 15 मिनट में भी जमीन पे गिरा हुआ था, कांप रहा था। सब यहाँ पे बर्फ जम गई थी, उनके फेस पे भी, बॉडी पे भी। उनको उठा के बाहर लेके गया, हीटर के पास रखा, उसको आधे घंटे में थोड़ी होश आई, तो उसने देखा कि मैं बाहर कैसे आया। उसने बोला सिक्योरिटी गार्ड को कि आप अंदर कैसे आए, आपको कैसे पता चला कि मैं अंदर हूँ। तो कमाल की बात बताता हूँ आपको, सिक्योरिटी गार्ड ने बोला, सर जब भी आप सुबह आए थे ना, तो आपने मेरे को प्यार दिया था ना, जैसे डेली आप देते हो, मेरी पीठ सब सफाई थी, आपने पूछा था क्या हाल है। ऐसे ही आप शाम को जब जाते हो, शाम को भी मेरे को मिल के जाते हो आप, और बेटा कैसा रहा आपका दिन, अच्छा रहा। आप कभी कभी मेरी हेल्प भी करते हो, 150 रुपए दे देते हो मेरे को। तो आज मैंने देखा आप मुझे मिले ही नहीं, आज मैंने आपको देखा ही नहीं। तो मेरे मन में आया कि साहब की मुसीबत में ना हो, मैं अंदर जाके देखता हूँ। तो मैं टॉर्च लेके ढूंढते ढूंढते आपको यहाँ पे आया, और मैंने जब रूम खोला आप अंदर पड़े थे। आपकी जो अच्छाई है ना, अच्छाई उस समय काम आएगी जब कोई रास्ता आपको नजर नहीं आएगा। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनके स्टंट डले होंगे, जिनको कैंसर था, जिनको एथलेटिक्स था, गठिया था, जो मेरे जैसे लोग थे, खानदानी शुगर थी, खानदानी हार्ट की प्रॉब्लम थी, हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन पता नहीं कोई बड़ों की सेवा करी है, कोई माता पिता का आशीष लगी है हमें, या कुछ संतों की संगत करी है, या पिछले जन्म में कोई मोती दान किए हैं, कि हमें भगवान ने एक कोच मिला दिया। सिक्योरिटी गार्ड की तरह कोच हमारी लाइफ में आ गया। उसने हमें उस दलदल से, उस बर्फ के कारखाने से पकड़ के बाहर ले आया, और हीटर रूपी न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में डाल दी। क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी ए फ्रेश के लिए। ये हमारा हीटर है, और हमारी जिंदगी ही बदल के रख दी, जिंदगी बदल दी। तो भगवान का हमेशा थैंक्स बोलना है। गुरबानी में पंक्ति आती है, देख फरीदा जू थिया शक्कर हुई विस, साईं बाजो अपने बेदन कहिए किस। जो ज्यादा मीठा खाते हैं ना लोग, हम भी खाते थे, ये मीठा ही एक दिन जहर बन जाता है आपकी बॉडी में। पाँव काटने पड़ते हैं मेरे ताया जी की तरह, बॉडी सुन्न हो जाती है मेरी दादी की तरह, किडनियां खराब हो जाती है मेरे फादर की तरह, और हार्ट में छेद हो जाते हैं मेरे चाचा की तरह, और वेट बढ़ जाता है मेरी तरह, 1.5 क्विंटल वेट हो जाता है मीठा खाने से। और एक पॉइंट लिखो कि इंसुलिन रेजिस्टेंट ही मोटापा है, और मोटापा ही कैंसर है, कोड है बॉडी में। अगर आज आपकी सेहत अच्छी नहीं है, दवाइयां खानी पड़ती हैं, घर में बीमारियां हैं, रात में नींद नहीं आती है, सुबह उठा नहीं जाता, बॉडी में पेन होती है, घर में क्लेश रहता है, गुस्सा बहुत है, कंट्रोल नहीं है अपने आप पे, तो एक चीज बदल दो मेरे कहने से, सिर्फ एक चीज, अपना खान पान। इस पे कंट्रोल कर लो। कुछ भी खाने से पहले 10 बार सोचो कि ये मेरी बॉडी में जाके इसने मसल बनाने हैं कि इसने फैट बनाना है, बस इतना सा अपने आप को पूछो। फिर जो ज़मीर की आवाज आए तो तभी आप खाना। स्वाद के लिए मत खाना, अपने शरीर के लिए खाना, आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़रूरी है। हाल ही में मैंने बहुत ऐसे केस देखे हैं कि 45 साल की एज में डेथ हो रही है, 48 की एज में डेथ हो रही है, हार्ट अटैक्स आ रहे हैं लोगों, पैरालाइज हो रहे हैं लोग, शुगर अटैक कर रही है, बच्चे अभी कुंवारे हैं, बच्चे छोटे हैं अभी। मतलब थोड़ा सोचो फैमिली के बारे में कि आपकी फैमिली आपके बिना कहाँ स्टैंड करती है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है कि जब भी पापा नहीं होते ना, तो बेटी की शादी के समय ना फिर उनका कोई फ्रेंड या उनका चाचा उनकी रस्म अदा करता है, पल्लू की रस्म होती है ना बेटी की, उस बेटी को पूछ के देखो कि उसको फादर की कमी कितनी फील हो रही है। ਜਦੋਂ ਪਿਓ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚਾਚਾ ਕਾਜ ਰਚਾਉਂਦਾ ਏ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ है। वो जो रो रही होती है ना, वो बता नहीं पाती, लेकिन अंदर से वो अपने
फादर को या अपनी मदर को याद करके चीख रही होती है वो समय, वो कुर्ला रही होती है, हाय पापा आज आप होते, आप कितना अच्छा होता। जो तो चाचियां मासियां झाड़ू पोचे कराउंदियां ने, उदों रब तो पहला मावां चेते आउंदियां। मां पता क्या कहती है, बेटे कोई नहीं मैं कर लूंगी, आप बैठो, आप पढ़ो, पढ़ाई में ध्यान दो। दूसरे पता क्या कहते हैं, खड़ी हो, चल कपड़े धो ले, पोचा ला ले, रोटी बना। ऐसा ही होता है, ये जिंदगी की सच्चाई है, ये मैंने हालात देखे हैं। माँ बाप देखो, जो कुदरती हो गया है वो तो कुदरत जाने, लेकिन आ बैल मुझे मार इससे तो हम बच सकते हैं ना। कुल्हाड़ी पे पैर मारने से तो बच सकते हैं, अपना खाना पीना ठीक करो। दूसरा गुरु साहब बोलते हैं, जैसी संगत वैसी रंगत। हमेशा ध्यान रखो आपके आगे पीछे के लोग कैसे बैठे हैं। अगर वो नेगेटिव हैं, उनको आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो, तो उनकी बातों को अंदर ले जाने से तो रुक सकते हो ना। इधर से सुनो, इधर से निकाल दो। मतलब किसी ने कुछ बोल दिया, हम स्ट्रेस ले लेते हैं। जब हम स्ट्रेस लेते हैं तो कॉर्टिसोल पैदा होता है, पता है आपको? कॉर्टिसोल पैदा होता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं सर मैं तो कुछ खाती भी नहीं, फिर भी मेरी शुगर ठीक नहीं हो रही। तो भाई आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हो, स्ट्रेस लेना बंद करो, अच्छे लोगों की संगत करो, अच्छे लोगों को सुनो, पाठ पूजा करो, अच्छी अच्छी वीडियो सुनो, संगत अपनी अच्छी करो। ओके। तीसरा गुरु साहब बोलते हैं कि इस मन को ना कोई गोल दे के रखो, इस मन को कोई निशाना बना के रखो, किक दे के रखो कि मेरे को वहां तक पहुंचना है। तो ये आपको हेल्प करेगा अच्छे कामों के लिए। नहीं तो वेला मन शैतान का कार्य होता है। मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। ये बहुत बलवान है, इसमें बहुत पावर है, ब्रेन में बहुत पावर, मन में बहुत पावर है, लेकिन मैं यूज करनी नहीं आ रही। इसको गोल दे के रखो, अपना गोल डेली लिखो। अगर आपका हेल्थ गोल है वो लिखो, अगर आपका कोई लेवल है वो आप लिखो। तो मैं प्रॉमिस करता हूँ आप धीरे धीरे चलिए, ये सारा चीज हो जाएगा। भगवान कहते हैं तू 2 कदम तो चल, मैं 98 कदम तेरे को लेने के लिए खड़ा हूँ तेरे आगे। तो घर से निकलता सही, मैं मिलवाऊंगा तेरे को ऐसे लोग जो तेरे को कहेंगे यस मुझे भी ज्वाइन करना है। निकलना पड़ेगा। चौथा गुरु साहब बोलते हैं कि आपकी लाइफ में कोई मेंटर होना जरूरी है, गुरु होना जरूरी है। ज्ञान का बद्दा बन रहा है, गुर बिन ज्ञान न होए। कुंभे बद्दा जल रहा है, जल बिन कुंभ न होए। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन हो जिसका आपके ब्रेन को थोड़ा डर भी हो और उसकी रिस्पेक्ट भी करे, उसका कहना भी माने। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है तो आप बहुत लकी हैं, उनका कभी आपको कहा टालना नहीं। और सबसे लास्ट में गुरु साहब ने बोला कि कंट्रोल, अपने आप पे कंट्रोल करना सीखो, अपने बोलने पे, अपने खाने पे, अपने रिएक्शंस पे। अगर आपको कंट्रोल करना आ गया तो आप पूरी दुनिया पे कंट्रोल कर लोगे, जिसको बोलते हैं मन जीते जग जीत। फरीदा आप सवारे मैं मिलिया सुख होए, जे तू मेरा होए रहे सब जग तेरा होए। पूरी दुनिया आपके पीछे आने वाली है। और 19 अगस्त के लिए कौन कौन रेडी है? 19 तारीख को देखो, आप में से कुछ लोग नहीं आएंगे। पता है वो कौन लोग हैं? जिनकी अभी तक टिकट ही नहीं हुई है। वो कैसे आएंगे? जिनकी टिकट हो गई है वो हैंड वेव करो, स्माइल करो बढ़िया सी। वेरी गुड। अब सबको आना है, विद फैमिली आना है। वो लोग नहीं आएंगे जो जूम सेशन में बैठते नहीं है। जो जूम में नहीं बैठते वो इवेंट में कैसे आएंगे? जिनके कैमराज ऑफ रहते हैं वो कैसे आएंगे? जो अपने कोच की बात ही नहीं मानते। कोच कॉल करता है, मैम 19 को हमने जाना है, उनके पास बड़े बड़े बहाने पहले तैयार होते हैं। 19 को तो ना हम घूमने जा रहे हैं मणिकरण हमारा प्लान बना हुआ है। वो 20 को भी जा सकते हो आप, अगर आपका मन हो। ओके। तो ये बहाने लगाने वाले कभी नहीं आएंगे, जो कोच की रिस्पेक्ट नहीं करते कभी नहीं आएंगे। और जिनको लगता है हमें तो बहुत आता है, MBA है हम तो, हमें क्या जरूरत है सीखने की, वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनना है, हमें आना है, सीखना है, आगे बढ़ना है। 800 करोड़ लोग बीमार हैं, उनकी हेल्प करने के लिए पहले सीखना तो पड़ेगा ना। हेल्प कैसे करनी है? सीखना तो पड़ेगा। तो सीखना बहुत जरूरी है। जरूर आप आइए। गाड़ी भी चलाते हैं तो सीखनी पड़ती है ना, ऐसे तो नहीं चलती। गाड़ी के पीछे लिखा होता है सीख कर चलाओगे तो बार बार मिलेंगे, बिना सीखे आ जाओ हरिद्वार मिलेंगे, लिखा होता है उनके पीछे। तो सीखना बहुत जरूरी है। सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। सीखना बहुत जरूरी है। सीखिए, आइए। और जो वेकेशन चल रही है उनको जरूर क्वालिफाई करिए, और पूरा जर्नी को आपको एंजॉय करना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ
90 साल की एज तक आपकी बॉडी का कोई पार्ट खराब नहीं हो सकता। क्लैपिंग कर दो बढ़िया सी। 6 काम करने सीख लो। यूज द प्रोडक्ट ऑनेस्टली, सारा प्रोडक्ट ईमानदारी से यूज करो जितना आपका बजट है। दूसरा, जूम सेशन में कैमरा ओपन करके बैठो, रिस्पेक्ट करो अपने कोचेस की। तीसरा, जब भी आपको मौका मिले अपना रिजल्ट शेयर करो। चौथा, जो भी इवेंट आ रहा है उसकी एडवांस टिकट बुक करवाओ, कोशिश करो विद फैमिली आओ, अगर टीम है तो टीम भी आएगी। ओके। एंड उसके बाद 5वां क्या है, लोगों की हेल्प करो। हेल्प ये नहीं कि आपको किसी से जबरदस्ती करनी है, सिर्फ आपको बताना है कि आप ठीक हो सकते हैं, बस इतना ही बोलना है कि मेरे को फर्क पड़ा है, आप भी ठीक हो सकते हैं। एक सिस्टम है, एक हमारा सेंटर है, वहाँ पे मैं आपको ले जाऊंगा, या आप जाइए वहाँ पे, आप ठीक हो जाएंगे। हमारे कोच से मेरी बात करिए। लास्ट में लिखो बड़ा बड़ा, नेवर एवर क्विट। पूरी दुनिया की तरफ हो जाए, आपको सिस्टम से क्विट नहीं होना है। कुछ नहीं है इसके बाहर, इसके बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ धक्के मुक्के ही हैं। फिर सिस्टम में हमेशा रहना है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ बहुत बड़ा करोगे आप लोग। अगर भगवान ने आपको यहाँ तक लाया है ना भगवान, तो बहुत बड़ा भी करवा देंगे। आप लगे रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, ब्लेस यू ऑल। थैंक यू साहिब, थैंक यू गुंजन, थैंक यू सो मच। Recording stopped. Right. जय पुत्रा ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਆਂਦੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਪੈਸੇ पेटीएम ਤਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਢਾ ਲੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕੈਸ਼ ਇੱਕ ਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੇਚਣ, ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਏਟੀਐਮ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਯੈਸ ਬਾਈ ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਚ ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਚ ਕਾਰਤਿਸ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ, ਆ ਲੋ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੋਂ ਕਢਾ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰ HDFC ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਉਹ ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੈਂ ਫੁੱਲ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲਿਬੜ ਗਏ ਜੀ।